Good morning, everyone. We will do this sum now in front of your screen. The Tata Tea Limited, Shimla, is having one of its branches at Pune. Goods are invoiced to the branch at 20% profit on sale. So the profit is how much? 20% profit on sale. Branch has been instructed to send all cash daily to head office, all cash daily to head office, except petty cash expenses which are met by the branch manager. So whatever collection happens in the branch, they on daily basis, it has to be sent to the head office except petty cash expenses, daily expenses which are which are done by the branch manager. From the following particulars, so here from the following, there is some spelling mistake, 1 minute. From the following particulars, prepare necessary accounts, in the book of Tata Tea Limited for the year 2018. Particulars rupees. Opening stock is given which has stock at invoice price, and we have debtors 9,000, opening balance, cash in hand 400, office furniture 1200, transactions during the year, goods sent to branch, invoice price 80,000. Invoice price means selling price. Goods sent to branch, invoice price 80,000. Goods returned to the head office 1,000. Goods returned by the dater 480. Cash received from dater 30,000. Cash sales 50,000. Credit sales 30,000. Discount allowed to dater. Discount which is allowed to dater, it will come in the dater account 30 rupees. Expenses paid by the head office for rent, salary, printing and stationery. And then we have petty cash expenses paid by the branch manager, as it is said in the earlier part of the question also, that the petty cash expenses will be dealt by branch manager. Depreciation is to be provided. So depreciation is to be provided on branch furniture at 10% per annum. Then they have given the closing stock at invoice price 14,000. You are further informed that under the instruction of the head office, Pune branch paid rupees 10,000 to one of the head office creditor. सो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पुणे ब्रांच ने क्या किया, 10,000 पे किया टू वन ऑफ द creditor of the head office. So now what we will do, we will start with this sum. So in the books of Tata Tea Limited, in the books of what is the name, head office. Now what is the name of the head office? Tata Tea Limited. So in the books of head office, whose name is Tata Tea Limited, which is this branch, Pune branch account.
So here particulars rupees, particulars rupees. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस brought down, these are the opening assets. So let us check what all assets we are having. We are having stock, debtor, cash and office furniture. So we'll paste everything. So now we want the amount. So we'll copy the amount. We'll copy the amount. One minute. So here, 1 minute, huh? So I will write again, once again. There is a problem to balance brought down. These are all the assets. Here what we will put all the assets. So I will copy all the asset and I will paste here. This we have already done. Now what we will do, we will copy all the amount and we will paste here. Now what will be the next step? By balance brought down. We want all the liabilities, but in the question liability is not given, but we have opening balance of liability is not given. So we will write here stock reserve. This is the load on opening stock. So load on opening stock, जरा देखो लोड कितना है. लोड इज 20% ऑन सेल. लोड कितना है, जितना भी सेल्स है, सेलिंग प्राइस है, उसका 20% इज द प्रॉफिट. जितना भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, तो हमें वर्किंग नोट में चाहिए, तो वर्किंग नोट में मैं बता देती हूँ. व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस का, सेल्स का, लाइक इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेल्स का 20%. सो 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ sales. So how much is the sale? Sales मतलब you can tell sale मतलब यहाँ पे what they are referring to selling price, or you may say invoice price, selling price और invoice price. तो यहाँ पे for the opening stock for the load on opening stock क्या करेंगे हम, 20% of how much is the opening stock ka invoice price, 15,000. So how much you are getting, 15,000 ka 20%, it will come to 3,000. So it will come to 3,000. It will come to how much, 3,000. So I will write here 3,000. So we got this. Now next what is given?
सो नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, एकदम डायरेक्टली दिया है। इससे पहले सम मतलब नॉर्मली ऐसा भी बोल सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसा बोलेंगे कॉस्ट प्लस 20%, अगर क्वेश्चन में बोला गया होता कि प्रॉफिट है कॉस्ट का 20% या कॉस्ट प्लस 20%, तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें लिखना पड़ता यहाँ पे फिर कि प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। सो यहाँ पे अगर हमें बोलते, यहाँ तो डायरेक्टली दे हैव टोल्ड दैट प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स इनवॉइस प्राइस। अगर ऐसे बोलते प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 20%, तो जिसको हम लोग ने कंपेयर किया कॉस्ट, उसको 100 मानेंगे। मतलब हम 100 रुपए का चीज बनाते, उसमें 20% प्रॉफिट चार्ज करके 120 में सेल करते हैं प्रोडक्ट को। तो हमें पता है इनवॉइस प्राइस 15,000 है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फिर हमें क्या मिलता, लोड मिलता, स्टॉक रिजर्व मिलता। पर यहाँ पे ये सब में ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव टोल्ड सेल्स का 20%। तो इससे पहले हमने जितना सम किया है उसमें क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया था। You can, if anyone have missed the previous lectures, you can go to the previous lectures, to the YouTube previous lectures and you can watch them. There कैसे प्रॉफिट के बारे में दिया गया था, and you will be able to understand. Now इतना हो गया. Now let us see what is given. So we move ahead. What is given here? देखो ये सब हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया. नाउ इट इज ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर. ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 इनवॉइस प्राइस. Now next will come to goods sent to branch and वो क्या है, इनवॉइस प्राइस है. मतलब इट इज द सेल्स प्राइस, अमाउंट इज 80,000. तो इसके ऑपोजिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच. ये क्या होगा, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेंट टू ब्रांच. मतलब जहां पे हम लोग ओरिजिनल एंट्री लिखते हैं उसके ऑपोजिट साइड में लोड का एंट्री लिखते हैं. लोड मतलब प्रॉफिट. तो अब प्रॉफिट कितना है, इनवॉइस प्राइस का, सेल्स प्राइस का 20%. यहाँ पे हमने वर्किंग में भी वही किया, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस. यहाँ पे इनवॉइस प्राइस है 80,000, तो उसका 20% कितना होता है, फाइंड आउट. कितना होता है, इट इज 16,000. इट इज हाउ मच, 16,000. नाउ इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में बोलते हैं गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस. गुड्स रिटर्न करेंगे तो ब्रांच से बाहर जाएगा. क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच. अब ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी इनवॉइस प्राइस. कितना अमाउंट है, 1,000. कितना अमाउंट है, 1,000. तो इसके ऑपोजिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. इसमें भी लोड होगा, लोड ऑन गुड्स रिटर्न्ड. कैसे कैलकुलेट करना है, जितना भी अमाउंट है उसका 20%, उसका 20%. तो कितना आ रहा है 1,000 का 20%, इट इज 200. इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है,
गुड्स रिटर्न टू डेटर्स। अब एक चीज देखो ये क्वेश्चन में, व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यहाँ पे डेप्रीसिएशन फर्नीचर का दिया है, लेकिन यहाँ पे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। तो हमें यहाँ पे एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी व्हाट, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। So what we will do, we will prepare the branch debtor account. तो यहाँ पे आएगा particulars rupees, particulars rupees, और ना debtor मतलब asset, debtor मतलब asset, asset को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, टू बैलेंस व्हाट डाउन डेटर कितना था ओपनिंग में, 9,000। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया है, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स। हमारे डेटर्स कौन है, हमारे डेटर्स आर अवर कस्टमर्स टू whom we have sold goods on credit। तो वो डेटर्स ने क्या किया, हमें गुड्स रिटर्न किया 480 का, हमारे वो डेटर ने हमें गुड्स रिटर्न किया 480 का। तो अगर गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम उसका पैसा नहीं पे करेंगे, गुड्स रिटर्न करना मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से डेटर कम होता है। एनी कंफ्यूजन हियर, डेटर इज अ असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बट डेटर्स अगर उनको सेल किया हुआ चीज वापस करेंगे तो उसका पैसा नहीं देंगे, तो डेटर कम हो जाएगा, कम होएगा तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट। दिस डेटर अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड इन द लास्ट चैप्टर आल्सो, दैट इज इनकम्प्लीट अकाउंट्स में भी हमने डेटर अकाउंट प्रिपेयर किया है। सो सेल्स रिटर्न, इसके बाद नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर से पैसा मिलेगा, डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर कम हो जाएगा बाय कैश बैंक। कितना पैसा मिला डेटर से, 30,000। और एक चीज यहाँ पे आएगा बाय कैश बैंक अकाउंट, ये क्या है ब्रैकेट में लिखो, रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस में हम क्या लिखते हैं, एक तो कैश सेल्स और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, डेटर से कलेक्शन हुआ 30,000। तो ये हम पूरा का पूरा पैसा किसको वापस करेंगे, हेड ऑफिस को। इट्स ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि जितना भी कलेक्शन होता है वो डेली बेसिस में, सी ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल डेली कैश, ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस। पेटी कैश एक्सपेंसेस को छोड़ के, जो कि कौन देखेगा, ब्रांच मैनेजर, विच विल बी आर मेट बाय द ब्रांच मैनेजर। उसके अलावा पूरा पैसा जितना भी आएगा हेड ऑफिस को रिटर्न कर देना है, अपने पास नहीं रखना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज 30,000। कैश सेल्स कितना है देखो, कैश सेल्स इज 50,000। सो यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स 50,000। इसके बाद कैश सेल्स के बाद व्हाट इज गिवन, क्रेडिट सेल 30,000। क्रेडिट सेल से हमारा डेटर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू क्रेडिट सेल्स 30,000, टू क्रेडिट सेल 30,000। तो इसके बाद एनीथिंग एल्स इज गिवन, इसके अलावा और क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कैन एनीवन टेल मी,
डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो किधर आना चाहिए? अगर डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कभी भी डिस्काउंट मिलता है हमें, यू परचेज समथिंग, अगर आपको डिस्काउंट दिया मतलब आपको कम पे करना है। तो अगर हमने डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर क्या हो जाएगा? डेटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेटर को डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम होगा, कम होगा तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट 30 रुपीज, बाय डिस्काउंट 30 रुपीज। फिर इसके बाद व्हाट इज दैट? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने खर्चा पे किया तो दैट विल कम हियर। डेबिट साइड में ब्रांच को ये पैसा मिलेगा फॉर पेइंग आउट एक्सपेंसेस, तो टू कैश बैंक, इधर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में वी विल राइट एक्सपेंसेस। ये कौन सा एक्सपेंसेस के लिए मिला है? लेट अस कॉपी दोस एक्सपेंसेस। रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो आई विल जस्ट कॉपी इट हियर। रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हाउ मच इट इज, ये भी कॉपी कर लेते। 1200, 2400 एंड 300, सो आई विल राइट हियर। ओके, सो ये भी हो गया। इसके बाद दिया है पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर। तो पेटी एक्सपेंसेस हम के लिए, हम जितना भी पैसा मिलता है हम पे कर देते हैं हेड ऑफिस को। तो पेटी एक्सपेंस कितना है? पेटी एक्सपेंसेस 250, और हमारे पास कैश कितना था? 400, उसमें से 250 पे करेंगे तो हमारे पास बाकी का पैसा बचेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसमें अभी हम लोग लिखेंगे पेटी कैश हमारे पास कितना है? हमारे पास 400 था जिसमें से हमने 250 पे कर दिया, तो अभी कितना बचेगा हमारे पास? 150। फिर हमें स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक इज हाउ मच? स्टॉक कौन से प्राइस में है? इनवॉइस प्राइस में है। कितना अमाउंट है इनवॉइस प्राइस में है? उसका अमाउंट है 14,000 ईयर स्टॉक ऑन 31st दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस। फिर हम एक और चीज लिखेंगे, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर पे अमाउंट है 1200, फर्नीचर इज 1200, उस पर डिप्रीसिएशन है 10%, तो 10% डिप्रीसिएशन माइनस करके कितना अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में? टेल मी हाउ मच इट शुड कम। 1080, 120, 1200 से 120 माइनस करो 1080। फिर लास्ट में यहाँ पे एक और चीज आएगा, दैट इज व्हाट इज इट? एक और चीज का क्लोजिंग आएगा, दैट इज ब्रांच डेटर्स, जो क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किया, इसको बंद करो। दिस विल बी 39,000, this will be 39,000. तो how much is the still balance? How much is the amount balance? डेटर को कितना पे करना बाकी है? डेटर को पे करना बाकी है बाय बैलेंस कैरी डाउन। How much is the amount we have to pay to? 8490, that is the balancing figure। इसके लिए तो डेटर अकाउंट प्रिपेयर किया, इट इज हाउ मच? 8490। अब इसके बाद ये साइड में भी तो लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है,
बट यहाँ पे एक चीज आएगा, दैट इज स्टॉक रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज व्हाट? लोड ऑन closing stock. Load on closing stock. So I will write here load on closing stock. How much amount कितना है closing stock का? 14,000. उसमें कितना profit है? 20%. So how much will be the load? How much will be the load? 2,800. अभी हमने सब कर लिया, अभी जस्ट क्लोज कर दो. क्लोज दिस अकाउंट. क्लोज दिस अकाउंट. 1 मिनट, एक चीज हमने अभी तक नहीं किया, जो लास्ट लाइन में दिया है. देखो क्या किया, ब्रांच ने 10,000 पे कर दिया हेड ऑफिस के क्रेडिटर को. तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे एक और चीज बताना पड़ेगा. लास्ट लाइन में दिया हुआ है बाई कैश बैंक. किसको पे किया? किसको पे किया? हेड ऑफिस क्रेडिटर. हेड ऑफिस के क्रेडिटर को ब्रांच ने पे किया. कितना अमाउंट पे किया? 10,000. कितना अमाउंट पे किया? 10,000. तो इसके बाद सी वन थिंग वाज रिमेनिंग, वो भी हमने कर दिया. नाउ वी कैन क्लोज दिस अकाउंट. 3,000, 16,000, 1,000, 50,000, 30,000, 10,000, 150, 14,000, 1080, 8490. ये सबको ऐड करो, यू विल गेट 133,520. इधर भी मिलेगा 133,520. तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर. कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो जरा देखो. हाउ मच बैलेंसिंग फिगर यू आर गेटिंग? $15,000, 9,400, 1,200, 80,000, फिर 1,200, 2,400, 300, 2,800, सब माइनस करके 21,220 is the final answer. Is the final answer. With this sum is done. Thank you very much everyone. 1 minute, everyone please. There is a small difference. This is coming 720. When we total the credit side, we get 1,33,750. Sorry, 720. One, not 520, it is 720. And now let us see the debit side, what it is coming. What is the balance coming? 15,000 plus 9,000 plus 400 plus 1,200 plus 80,000 plus 200 plus 1,200 plus 2,400 plus 300 plus 2,800. It is coming 1,12,500 minus 133,720. We are getting 21,220. Means our answer is correct, but only this is 133,720, not 133,520. That was only a small error which we have rectified. Thank you once again. I end the lecture now.